हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज मेरे साथ हैं करण। करण हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हरियाणा में मेरे ख्याल कुरुक्षेत्र से, पिहोवा से। और करण वो स्टूडेंट है जो बड़ी देर से अपने वीज़ा की वेट कर रहा था। करण ने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल के लिए मास्टर पब्लिक हेल्थ में अप्लाई किया था। 17 फरवरी को फाइल लगी थी। और मेडिकल कब हुआ था? मेडिकल 5 मार्च। 5 मार्च को मेडिकल हुआ था। और उसके बाद वी वर वेटिंग। इनटेक जो था वो फेब एंड का इनटेक था, बट अनफॉर्चुनेटली डिसीजन डिले होने की वजह से सो वी वर होपिंग कि जुलाई से पहले पहले वीज़ा आ जाए। और जैसा मैंने परसों वीडियो में बताया था, परसों वी हैव रिसीव्ड वीज़ा ऑफ करण फॉर मास्टर पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो वीज़ा आया करण का, कोई इंटरव्यू नहीं हुई, कोई इनसे वेरिफिकेशन नहीं हुई। करण हरियाणा के रहने वाले हैं। करण ने 2013 में अपनी 10th की थी, 2015 में मेडिकल से अपनी 10+2 की थी। उसके बाद AIPMT का एग्ज़ाम की तैयारी की 2 साल। उसके बाद बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स किया, 4 साल की बैचलर ऑफ फार्मेसी की, जो कि 2021 में कंप्लीट हुई। PTE के बेस पे वीज़ा है, 62 ओवरऑल, नॉट लेस देन 60। और मास्टर पब्लिक हेल्थ के लिए कालाघन कैंपस, जो कि रीजनल एरिया है यूनिवर्सिटी न्यूकासल का, उसके लिए। तो अब मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। करण वॉज अ स्टूडेंट हु वॉज कॉन्स्टेंटली इन फियर कि मेरा क्या होगा। इज बीन कॉलिंग रेगुलरली, बट नाउ करण मुझे लगता है कि राहत की सांस आ गई है फाइनली। Yes, sir. Yes. Anything you want to say? My name is Karan. I am from Pihova, and I have applied for Australian visa, which is subclass 500, and I have got the offer letter from University of Newcastle. I have applied in University of Newcastle on 28th of January, and I have lodged my file on 17th of Feb, and all the process was completed in 20 days. Nowadays the GT criteria will meet within 2 months, but I have meet all the requirements like GTE, like unconditional offer letter, like lodgement. Within 20 days I have got this type of process. So after 20 days I lodged my file. Unfortunately I haven't got my medical appointment because of rush, and I have got my medical appointment on 5th of March. And after 5th of March I have waited for around 2 months, and now on 27th of April I have got my visa. So I want to share the experience with Jupiter Consultants. I have give the file to Jupiter Consultants, and they are ARI members, and they are registered with Australian Immigration. Any updates given by the Australian High Commission, which is totally firstly give to the ARI members. ARI members registered consultants which usually studied for the consultancy for the visa filing. So I have filed to ARI members, and if I talk about the experience with Jupiter Consultants, they are more transparent. They are more transparent with visa filing. They are if they are preparing the SOP of students, they are share with the SOP. If the students add or any neglect the information of SOP, they can also agree with that, if students agree with that. So my university is University of Newcastle, which is level 1 university, and which is situated in mainly the two or three location in Australia, like in Newcastle, in Sydney, or in Callaghan. And my campus is Callaghan, because in Callaghan there is lots of medical courses available here, nursing courses, or I can say Masters of Public Health, which I enroll in that particular course, and which is a 1-year program. After Master of Public Health I will enroll in Master of Clinical Epidemiology. And after completion of both the degrees, I will got my post-study work permit, which is 4 years. In other cities, that's 3 years. In Newcastle, if we complete both the degrees in Newcastle University, we can get 4 years post-study work permit, which usually impact our score, our points, which usually help in the permanent residency of Australia.
So that's all about my profile. So I am very happy with that, and I am very thankful to Jupiter Consultants, which share every information with me about my visa filing, about my SOP, about anything about my visa filing. So I am very happy with that. So thanks a lot, Jupiter Consultants. ऐड तो नहीं कर रहा तू हमारी? नहीं सर, ऐड नहीं है। ऐड नहीं है, मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो ये है करण, और इवन यूनिवर्सिटी इज़ वेरी हैप्पी विद हिज प्रोफाइल बिकॉज कॉन्टीन्यूसली जैसे यूनिवर्सिटी के सेल्स एंड मार्केटिंग के जो एग्जेक्टिव हैं या ऑफिसर्स हैं वो पूछते हैं कि भाई करण का क्या बना, बिकॉज ही वॉज द वन, यू नो, द यूनिवर्सिटी वॉज वेरी pleasantly surprised or influenced with the way he, you know, researched about the university, and I was in constant touch with the university officials कि भाई ऐसे ये चीज़ें हैं। और ड्यूरिंग दिस टाइम आई वाज टेकिंग मॉक इंटरव्यूज करण की मैं लेता था, तो मैं देखता था कि जो इसकी रिसर्च और जो तैयारी थी वो बहुत अच्छी थी। अगर इंटरव्यू आ भी जाती तो आई वाज कॉन्फिडेंट कि करण वो क्लियर कर लेता, बट फॉर्चुनेटली वो नहीं आई और हमें सीधा वीज़ा ही मिल गया। तो उम्मीद है इससे आप लोग, और मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, पिछले 3 दिनों से लगातार लोगों के बहुत ज़्यादा वीज़ाज आए हैं, जो एक तरह से स्टैंड स्टिल हो गया था काम वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, जो प्रोसेस रुक गई थी कहीं ना कहीं, वो दोबारा प्रोसेस में आ गई है, उसको दोबारा वो चलनी शुरू हो गई है। तो अगर आपकी फाइलें लगी हुई हैं, फेब की लगी हुई हैं या मार्च की लगी हुई हैं, बी रेस्ट एश्योर्ड आपके भी वीज़ा आएंगे। और अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में अप्लाई किया है, तो आपकी जो होप्स हैं आप उनको और हाई कर सकते हो, क्योंकि रैंकिंग बहुत मैटर करती है। 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एक कमर्शियल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो अपने आप को बहुत एडवर्टाइज करती हैं। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में कुछ 5-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका नाम हर एजेंट लेता है, हर स्टूडेंट के नाम पे है, बट अगर उसकी आप रैंकिंग देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल के मुकाबले, तो 100, 150, 200 रैंक यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल से पीछे हैं। ये यूनिवर्सिटी बेसिकली एकेडमिक और रिसर्च के ऊपर फोकस्ड है, और ये अपनी मार्केटिंग करने के ऊपर फोकस्ड है, बिकॉज दे बिलीव इन डिलीवरिंग दी वैल्यू। और वही चीज़ करण ने देखी है, बिकॉज इसने बहुत रिसर्च की बिफोर ही, यू नो, गॉट रजिस्टर्ड विद अस। सो एक तरह से ये टेस्टिमनी टू द फैक्ट है कि जो अच्छी यूनिवर्सिटी में आप अगर पढ़ने जाओगे, आपने फाइल लगाई है, तो आपके चांसेस जो वीज़े के वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसी के साथ इसी ऑप्टिमिस्टिक नोट पे हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। हाँ? एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं, जो एरी मेंबर्स हैं उनसे ही फाइल अपनी मतलब प्रोसेस करवाइए। जो मतलब ऐसे जो लोकल एजेंट्स हैं उनसे प्रोफाइल को असेस मत करवाइए, क्योंकि वो सिर्फ नोटरी करवा के आगे भेज देते हैं, मेल कर देते हैं और किसी रजिस्टर्ड को भेज देते हैं, और उनको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, जो अपनी फाइल है ना, मतलब एरी मेंबर से ही मतलब आप प्रोसेस करवाएं। तो मेरा कहना यही है। थैंक यू सो मच करण। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं भी एरी मेंबर हूँ और भी एरी मेंबर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा मेरे से, क्योंकि आर एसोसिएशन इज बीन क्रिएटेड बाय द ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन, नंबर 1। दूसरा, एवरी मंथ वी हैव इंटरेक्शन विद ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ऑफिशियल्स। हर 6 महीने बाद हमारी वहाँ पे विजिट होती है नहीं, तो वी आर यू नो अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट व्हाट इज हैपनिंग इन दी एम्बेसी, और क्या उनकी पॉलिसीज हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं। अब एक बहुत बड़ा चेंज जो है, पॉजिटिव चेंज एडी मेंबर्स के लिए होने वाला है, मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तुमने भी वो मुझे मेल भेज दी थी, जो कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बेनिफिट करेगा अगर आप एडी मेंबर के थ्रू अपनी फाइल को प्रोसेस करते हैं। आई विल नॉट बी गिविंग द डिटेल्स कि क्या हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप बहुत सारे लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक तसल्ली मिलेगी कि ऑस्ट्रेलिया वीज़े दे रहा है, कोई रीजन स्पेसिफिक कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हरियाणा का स्टूडेंट है, PTE वाला स्टूडेंट है, और आपके सामने रिजल्ट है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी ऐसी सक्सेस स्टोरी की हम वीडियो बना के दिखाते हैं। थैंक यू।